हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये डिस्कशन हम लोग के बीच में लेके आ रही हैं एडवोकेट मिस आंचल मदान, दिल्ली हाई कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Balancing is what every law aims to do, and Constitution stands at the ground. नमस्ते, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर आज स्वागत है। इस वीडियो के मध्य हम आप सभी को यह बताएंगे कि प्रशांत भूषण केस में आखिर हुआ क्या था और कंटेम्प्ट लॉ आखिर है क्या। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की 2 ट्वीट्स की वजह से। आखिर वो ट्वीट्स थे किस पे? पहला ट्वीट हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर था और दूसरा ट्वीट हमारे जुडिशल करप्शन के ऊपर था। यह बात जान लेना बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रशांत भूषण जी ने पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कमेंट किया या किसी लॉयर ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ पहली बार ऐसा कहा है, बल्कि ये काफ़ी बार पहले भी हो चुका है और उस पर काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स और बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है। तो प्रशांत भूषण जी ने 2009 में भी तहलका मैगजीन के एक इंटरव्यू में उन्होंने तब भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोला था जो कि जुडिशल करप्शन से रिलेटेड था। बिफोर गेटिंग ऑन टू द फैक्ट दैट कि आखिर ये केस है क्या, इसकी इंट्रिकेसीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आई वुड लाइक टू टेल यू through this video we are not challenging the validity of any law or we are not criticizing the institution. We are just discussing the case law. So now let's start. Now it is very important to understand as to what makes the Supreme Court initiate the suo moto contempt proceedings against the senior advocate Prashant Bhushan. The Honorable Supreme Court in its 108-page order for conviction itself stated that the Supreme Court is not going on to the fact that a judge has been personally attacked or Mr. Bhushan has commented on the judicial corruption. The Supreme Court is of the view that it has actually made a kind of distrust in the mind of public that the very institution who is responsible for guarding the democracy is distorted to such an extent. The question is that what makes the Honorable Supreme Court take the suo moto contempt proceedings against the senior advocate Prashant Bhushan? When you see the 108-page order of conviction against the senior advocate, the judgment repeatedly tells that the object of the contempt proceedings is not to afford any protection to the judges personally from imputations. Instead, it is to protect the people at large and uphold the rule of law, as distrust in the popular minds does impair the confidence of people in courts, as such confidence of people is of huge importance for the protection of rights and liberties of people. And to further appreciate it, the Supreme Court has also laid down that it considers itself to be the center pillar of democracy, and it has been rightly stated further that the trust, faith and confidence of the citizens of the country in the judicial system is the sine qua non for the existence of rule of law. Now there's one more thing which has to be seen, that is, in all the contempt judgments, the court has been using its power in the name of people or public, and यहाँ तक कि इस केस में भी, in the current case, in the 108-page order, in the order of conviction of the respondent, इस judgment पे भी कोर्ट ने 27 times public शब्द का इस्तेमाल किया है। अब हमारे लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है क्या। क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में डिफाइंड है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट आखिर है क्या? क्रिमिनल कंटेम्प्ट वी रीड इट एज फॉलोज: इट मीन्स द पब्लिकेशन, whether by words, spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise, of any matter or doing of any other act whatsoever which 1.
scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court, prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceedings, or interferes or tends to interfere with or obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner. अब हमारे लिए ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्या इनमें से कोई सा भी इंग्रेडिएंट जो कि प्रशांत भूषण जी के ट्वीट से कहीं से भी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। पहला, क्या प्रशांत भूषण जी का जो ट्वीट है वो किसी तरीके से कोर्ट को स्कैंडलाइज या फिर टेंड्स टू स्कैंडलाइज या फिर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी तरीके से अथॉरिटी को लोअर कर रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की प्रोसीडिंग्स में कहीं इंटरफेयर कर रहा है, या फिर वो कोर्ट को किसी भी तरीके की ऐसी प्रेजुडिस दे रहा है या ऐसा हार्म दे रहा है कि जिसकी वजह से कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग इफेक्ट हो रही है। ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने फाइनली एडवोकेट प्रशांत भूषण को कन्विक्ट किया एंड उस कन्विक्शन में यह था कि या तो प्रशांत भूषण जी 1 रुपये का फाइन पे करेंगे या फिर उसके बदले में उनको 3 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए जाना पड़ेगा और उनकी प्रैक्टिस में 3 साल के लिए बार लगेगा। अब देखने वाली ये बात है कि जब भी हम किसी पनिशमेंट को ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट देते हैं तो ये देखना चाहिए कि दोनों की जो पनिशमेंट है वो एक जैसी हो, अलाइक हो। बट लेकिन कहाँ 1 रुपये फाइन और कहाँ 3 मंथ्स का सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड 3 इयर्स का प्रैक्टिस पे बार। और दूसरी चीज ये भी देखने के लिए है कि जब कोर्ट के पास ऑलरेडी अंडर सेक्शन 12 पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट जो कि दी गई है, उसमें लिखा गया है कि कोर्ट जो है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट दे सकती है या फिर 2000 रुपीज तक का फाइन दे सकती है या फिर दोनों दे सकती है। तो कोर्ट को प्रैक्टिस पे बार लगाने की क्या ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ यह भी है कि कोर्ट के पास यूजुअली एक राइट नहीं है कि एक एडवोकेट की प्रैक्टिस पे वो बार लगा सके, बट लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे कोर्ट हैज गॉन फॉर एक्चुअली बारिंग एन एडवोकेट टू प्रैक्टिस, बट लेकिन द रियल इंस्टीट्यूशन जो कि किसी एडवोकेट की प्रैक्टिस को बार लगा सकती है या तो वो स्टेट बार काउंसिल है या फिर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। जब भी कभी भी सेंटेंसिंग की बात होती है तो कोर्ट जनरली 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। एक होते हैं एग्रीगेटिंग फैक्टर्स और एक होते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स। तो जो एग्रीगेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली किसी पनिशमेंट को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं, और मिटिगेटिंग फैक्टर्स विच इज लाइकली टू रिड्यूस द इम्प्रिजनमेंट। अब जब हम प्रशांत भूषण जी के इस केस के बारे में बात करते हैं तो एग्रीगेटिंग फैक्टर कुड बी दैट दिस इज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट ही हैज गॉन ऑन to comment upon the Supreme Court. This is not the first criticism that he's ever made in life. He has previously done it as well. And one such example is the 2009 Tehelka magazine interview. And mitigating factors की अगर बात की जाए तो इस केस में ये हो सकती है कि प्रशांत भूषण जी जो हैं वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, एंड बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स जो हैं वो सारे उनकी वजह से आए हैं, एंड यहाँ तक कि वो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि प्रो बोनो करते हैं। सो ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स है। सो यूजुअली कोर्ट क्या करती हैं, वो मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग के बीच के पॉइंट में डिसाइड करती हैं कि पनिशमेंट किस हिसाब से देनी चाहिए। कोर्ट ने इस केस में अपील करने का प्रशांत भूषण जी को राइट नहीं दिया, पर लेकिन रिव्यू तक रहने का पूरा राइट दिया है। अब डेट 15 सितंबर डेडलाइन दी है कि अगर वो 1 रुपये का फाइन नहीं देते तो उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद 3 मंथ्स और साथ में उनकी 3 इयर्स की प्रैक्टिस को लेकर के बार लग जाएगा। बट लेकिन लेट्स सी, अभी तक इस पॉइंट पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, एंड नीदर हैज ही पेड द फाइन टिल नाउ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और केवल इतना ही नहीं, अगर कोर्ट चाहती तो कोर्ट सेक्शन 13 भी इन्वोक कर सकती थी। सेक्शन 13 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 ये कहता है कि कंटेम्प्ट नॉट पनिशेबल इन सर्टेन केसेस। इसमें यह लिखा हुआ है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट शैल इम्पोज अ सेंटेंस अंडर दिस एक्ट फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट unless it is satisfied that the contempt is of such a nature that
it substantially interferes or tends substantially to interfere with the due course of justice. But लेकिन ऐसा नहीं है. Now you see, in order to say that this case is a fit case for the contempt proceedings and this case is not a fit case for contempt proceedings, it is not very right to say, because the law on this area is not yet settled. अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन जो है वो अनसेटल्ड है. और अगर हम बात करते हैं जुडिशल प्रेसिडेंट्स की, तो जुडिशल प्रेसिडेंट्स भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं एक दूसरे का, क्योंकि कुछ जुडिशल प्रेसिडेंट्स कहते हैं कि कंटेम्प्ट होना चाहिए एंड कुछ जुडिशल प्रेसिडेंट्स सपोर्ट करते हैं कि कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए. और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 108 पेज के ऑर्डर में ब्रह्म प्रकाश शर्मा जजमेंट को साइट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट क्यों जस्टिफाइड है. उसमें यह है, इस जजमेंट में यह ऑब्जर्व किया गया है दैट इट इज़ इंटेंडेड टू बी अ प्रोटेक्शन to the public whose interest would be very much affected if by the act or conduct of any party the authority of court is lowered and the sense of confidence which people have in administration of justice by it is weakened, and the contempt powers are to be invoked to restore this confidence. और अगर थोड़ा सा लिबरल अप्रोच को देखा जाए तो लिबरल अप्रोच में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही शिवशंकर 1988 एंड रचापुड़ी सुब्बाराव 2004 केस में ये हेल्ड किया है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट डज नॉट इम्पेयर एंड हैम्पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड कैन नॉट बी पनिश्ड एज कंटेम्प्ट. और केवल इतना ही नहीं, जहाँ से हमने ये लॉ लिया है, यानी कि ये लॉ हमने इंग्लैंड से लिया है, वहाँ पे ये लॉ ऑलरेडी स्क्रैप हो चुका है. एंड लास्टली जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ऑब्जर्व किया था दैट द नॉर्मेटिव गाइडलाइन फॉर judges to observe in contempt jurisdiction is not the hypersensitive even where distortion and criticism oversteps the limit, but to deflate vulgar denunciation by dignified bearing, condescending indifference and repudiation by judicial rectitude. Thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe.